Hello everyone, welcome to our YouTube channel Love with Biology, and here I am Pulkit Mishra, and this is going to our second lecture of our chapter, the biological classification, in which we are dealing with the vast concepts. And now you are saying that it is a new form of, you know, it is a new form of setup which I built for you all, and now we are dealing with our second part of biological classification, right? So, in our first lecture, we had discussed about what do you mean by biological classification. We had learned about the chapter name. What does you mean by the biological classification? We also learned that what exactly the non-scientific system of classification was. We also know what was the first scientific system of classification and the two kingdom system of classification. So initially, I will revise you all the topics which I had covered in the last lecture, right? So we had covered basically the non-scientific system of classification. Okay. So in that system of classification, the arguments basically classified different correct like classify different things on the basis of their need. For example, for the purpose of security, they basically classified the dogs, horses, and all the weapons that they were used on that time. Right. On the other hand, for the purpose of their home, for the purpose of the shelter, they basically use different things like woods, timber, and several other pine-like materials. Okay. So it means they basically classify different things on the basis of their need. Now we are dealing with the now we are talking with the first scientific system of classification, right? Which was given by whom? Whom? Aristotle, right? So कहते हैं उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को कैरेक्टराइज किया था. ठीक है. ही बेसिकली he basically differentiated the plants and animals on the basis of their morphology. प्लांट्स को उन्होंने उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया था. फॉर एग्जाम्पल हर्ब, शर्व एंड ट्रीज. छोटे मोटे पौधे बताया ना. ट्रीज लंबे लंबे बहुत होते हैं, ट्रीज वगैरह. ठीक है. तो बेसिकली इन्होंने जो हमारे अरस्तु थे, इन्होंने बेसिकली जो बड़े जो प्लांट्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी क्लासिफाइड किया था. ठीक है. एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड रेड absence ऑफ रेड ब्लड सेल उन्होंने बेसिकली क्लासिफाइड किया था. जो एनिमल्स जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, दे आर बेसिकली नोन एज इनाइमा, मतलब प्रेजेंस. ठीक है. while those animals which lacks the red blood cells are the anima. Later we had talked about the two kingdom system of classification, जिसको दिया था हमारे कैरोलस लिन्ने ने. कैरोलस लिन्ने ने he basically differentiated the plants and animals. He basically differentiated the plants and animals on the basis of presence and absence of cell wall. ठीक है. तो हम लोगों ने देखा जब इन्होंने क्लासिफाइड किया डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को, तो इन्होंने प्लांट्स में मैक्सिममली प्लांट्स में इन्होंने कुछ ऐसे स्पेशीज को रख दिया जो बेसिकली एक कोई मतलब इन्होंने एक ऐसी स्पेशीज को रख दिया that were exactly not a part of the plant. ठीक है. For example, mycoplasma, which do not consist of any cell wall, which I will tell you in the further classes. He classified mycoplasma in the plants. Lichens are not a type of a particular organism. It is a symbiotic association between a fungi and algae. But he classified also lichen in the plant kingdom. That were the some mistakes which were seen in the two kingdom system of classification. Just because of that, in order to make different level of in order to make different system of classification or the more advanced system of classification, several things are needed. For example, the major concentration shows on up the body organization, cellular structure, right, and phylogenetic relationship. ठीक है. So आज basically we are starting with the three kingdom system of classification. ठीक है. So let's start now. Three system
classification, right? So we are dealing with the three kingdom system of classification, guys. 1 minute. Here, what we will do is, the three kingdom system of classification was given by whom, right? It was given by Haeckel. It was given by the botanist Haeckel. It was given by it was given by it was given by Haeckel, and it introduced this kingdom system of classification. Basically, introduced the protista. It introduced protista, which you are getting with other organisms, which I am going to tell you in this chapter. Protista, ठीक है, और protests, ठीक है. So this three kingdom system of classification was given by Haeckel, and it introduced the protesta. But before this, what the things came in the mind of botanist? Let's try to understand this. After two kingdom system of classification, system after some observable observable fact were noted. ठीक है. So after the two kingdom system of classification, some observable factors were noted, and these factors were to focus upon cellular organization, body structure, and phylogenetic and relationships. Okay. So before introducing the protista, before introducing the three kingdom system of classification, it was keep in mind of different botanists that there is a need to be observed different factors which are be useful for the further classification. So these factors were cellular organization, body structure, and phylogenetic relationship. Right? I will explain you each term. What exactly does it mean? Then we will move to four kingdom system of classification, and then we'll move to the five kingdom system of classification. Okay. So basically, cellular organization. It means whether the organism is unicellular or multicellular. Or are very aware about the body structure, guys. Right? Complex body structure, simple body structure. You are very aware about it. Okay. The main thing is phylogenetic relationship. So just make a
स्मॉल नोट अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए, नोट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इट मीन्स बेसिकली द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इट मीन्स कि जो आपके अंदर जीन्स आए हैं, जो आपके अंदर जो जीन्स आए हैं वो अपने एंसेस्टर से हैं, वो कितने कॉमन है। दीज आर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बताता हूँ कैसे। ध्यान रखना, इसको यहाँ बनाता हूँ जिससे ये कवर हो सके। ठीक है, ठीक है, देखो, लाइक सपोज ये ग्रैंडफादर है। ठीक है, इसके नीचे योर फादर, और हो सकता है ग्रैंडफादर के दो चाइल्ड हो, तो उनमें एक आपके फादर हो गए और एक आपके चाचा जी हो गए। एक आपके फादर, फादर, चाचा जी। ठीक है, चाचा जी, फादर के दो बच्चे, मीना एंड दीका, राइट। एंड चाचा जी के दो लड़के विच आर नेम्ड एज सोनू मोनू, सोनू एंड मोनू, राइट। सिमिलरली 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 एक और मैंने फैमिली ट्री बनाया, एक और मैंने फैमिली ट्री बनाया जिसमें मैंने ये टू। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा फैमिली ट्री बनाता हूँ क्योंकि इतने बड़े की नीड नहीं है हमें, बट सच अ लार्ज फैमिली ट्री। फादर, बुआ का एक लड़का, दो लड़के बना लेते हैं, हनी और मनी, हनी एंड मनी। एंड फादर के पप्पू एंड सप्पू। ठीक है, अब यहां समझना, अगर मैं कहता हूं कि ये जो फादर नंबर 1 है, ठीक है, ये फादर नंबर 2 है, ये फादर नंबर 1 बेसिकली किसके, तो हम बता सकते हैं कि ग्रैंडफादर की हायरार्की है फादर नंबर 1। तो फादर नंबर 1 की जो सिमिलरिटी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब ऐसे रिलेशनशिप जो बेसिकली इवोल्यूशन के द्वारा आते हैं। ठीक है, आपका चेंजमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपकी जो जनरेशन होगी उससे जो आपका अटैचमेंट होगा, उससे जो आपके कनेक्शंस होंगे, दैट ऑल आर कॉल्ड phylogenetic relationships and the evolutionary relationships basically। ठीक है, चलिए, इट जस्ट अ फैमिली ट्री, इसको आप लोग इरेज कर सकते हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट बिकॉज इट इज नॉट इन आवर टॉपिक। यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर दी इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन रिलेशनशिप in which
the members of in which the member of similar in which the members of similar are placed. ठीक है, so this is all about the phylogenetic relationship. तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्रैक कर लिया, वी आर डीलिंग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मैंने आपसे कहा कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद कुछ ऐसा करने का मौका चाहिए था जिससे मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए थे जो बेसिकली अगले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड वर्जन दे सके. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने इन फैक्टर्स की बात करी कि ये फैक्टर्स होने चाहिए जिनमें हमारा काम चल सकता है, मतलब आगे अच्छा एडवांसमेंट हो सकता है. इसके बाद आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड हुआ. ठीक है, इसके बाद ही आपका थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय द हेटल एंड इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटेस्टा was was started or was involved in this right now. राइट, सो अब आता है इसके बारे में हमारा आता है बेसिकली फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बहुत छोटा सा आगे. ठीक है, तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी यही सिमिलर कैरेक्टर्स को नोटिस किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे माप लिए जाएंगे, वरना एडवांसमेंट होता ही है. थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद फोर किंगडम सिस्टम आया जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है आज के टाइम पर. सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया है लेकिन अभी उस पर डेवलपमेंट चल रहा है, तो बेसिकली अभी उसको हमारे सिलेबस में नहीं लाया गया, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा बिकॉज पूरा सा. ओके, सो now topic comes upon the four kingdom system of classification. Four of classification. अगेन जैसे हम लोगों ने प्रोटेस्टा के बारे में लिखा वैसे हम लोग यहाँ पे मोनेटा के बारे में बात करेंगे. Here we are dealing with the monera. It was introduced by the introduced introduced by the Copeland. ठीक है, कोपलैंड साइंटिस्ट थे, मतलब आई मीन कोपलैंड बॉटनिस्ट थे जिन्होंने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था. इट, ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोपलैंड एंड इट इंट्रोड्यूस्ड इट बेसिकली, या फिर स्टार्टेड बाय लिख दो या फिर गिवन बाय लिख दो, ये ज्यादा स्टार्ट अच्छा रहेगा. इट वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय कॉपलैंड. ठीक है, बाय कॉपलैंड, बाय कॉपलैंड, बाय कॉपलैंड. ठीक है, इट वाज गिवन बाय द कॉपलैंड एंड it introduced it introduced it introduced it basically introduced it basically introduced monera, kingdom monera. ठीक है, which is a kingdom. ये ऊपर वाले भी किंगडम है. ठीक है, किंगडम, ठीक है, मोनेरा किंगडम. इट इंट्रोड्यूस द मोनेरा किंगडम. ठीक है, मोनेरा में बेसिकली आपके बैक्टीरिया वगैरह आते हैं. ठीक है, प्रोटिस्टा में आप जानोगे कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स आते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके प्रोटिस्टा में आते हैं. लेकिन आज मैं आपको मोनेरा पूरा पढ़ा के चाहूंगा. लेटर ऑन कल की क्लास में वी आर डीलिंग विद द प्रोटिस्टा. ठीक है, तो ये इट इंट्रोड्यूस्ड विद द मोनेरा किंगडम. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कई लोग कंफ्यूजन, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. एक मिनट, लेट मी हैव अ सीट की लंबी काफी
you know it is very tall at the time, so लेकिन आपको दिखेगा नहीं है आई थिंक, ठीक है, सो ऐसे ही लिखते हैं, कोई बात नहीं। जरूरत पड़ेगी तो ये हम इसको रब कर लेंगे, ठीक है, चलिए। सो नोट डाल के लिखिए, नोट, नोट was earlier was earlier discovered or coined, earlier coined than the Monera। लेकिन अभी आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें आप लोग जानोगे कि हम लोग मोनेरा को पहले पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटिस्टा। लेकिन एक बात कंफ्यूजन हटा लो कि मोनेरा पहले नहीं आया, मोनेरा सेकंड नंबर पे आया, प्रोटिस्टा सबसे पहले आया। देखो प्लांट और एनिमल की तो बात ऐसी है कि प्लांट एनिमल को वी कैन जस्ट एज्यूम देम विद द हेल्प ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। कभी हम किसी प्लांट को देख के ये नहीं कहते कितना सुंदर हिरन खड़ा है, वी आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है, क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है कि हाँ हम इतने फेमिलियर तो हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैरेक्टराइज कर सके आराम से। वी आर डीलिंग विद द सेम, ठीक है, वी आर डीलिंग विद इट सिंपली, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा और मोनेरा से ही हमारा बेसिकली से स्टार्ट होता है बेसिकली चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग वी आर डीलिंग विद द प्रोटिस्टा एंड वी आर डीलिंग विद द मोनेरा। तो लेकिन हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली पहले मोनेरा के बारे में बातें करते हैं, राइट। तो बता देना चाहता हूँ, जरूर पढ़ते हैं हम लोग मोनेरा के बारे में पहले हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि वो सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रोटिस्टा। लेकिन प्रोटिस्टा वॉज इनिशियली इन्वेंटेड और इनिशियली कॉइंड बाय दी हेकल साइड। प्रोटिस्टा वॉज इनिशियली कॉइंड बाय द हेकल, then the monera which was coined by the home, which was coined by home, which was given by home, Copeland, right? So protista, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई है, अच्छे से आ गया है। अब हम लोग यहाँ से अपना फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको मोनेरा के बारे में बताऊंगा, ठीक है, फिर हमारी क्लास अच्छी चलेगी, चलेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो हम लोगों ने भी पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि थ्री किंगडम सिस्टम, यहाँ से रिवाइज करते हैं पहले, ठीक है, कि आफ्टर टू किंगडम वर नोटेड, ठीक है, मतलब दो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद कुछ ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स को नोटिस किया गया, ठीक है, और दीज फैक्टर्स वर टू फोकस अपॉन, ये फैक्टर्स थे बेसिकली किस पर फोकस करने के लिए, सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट मींस द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर दोज relationships in which we are dealing with the genes, right? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम कितने सिमिलर हैं, मेंबर ऑफ द सेम कैटेगरीज, मेंबर मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि मेंबर्स फ्रॉम द सेम कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन द सेम कैटेगरी। ये आगे के चैप्टर में प्लांट किंगडम में अच्छे से बताऊंगा आपको हर चीज के बारे में, ठीक है। इससे पहले एक मिनट, ये तो रह गया था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आंख बंद करके मेरे साथ बोलो, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय होम, हेकल, राइट, एंड इट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा आर बेसिकली द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट, यूनी सेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, राइट। सो जो मोनेरा होते हैं दे आर दी प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, ठीक है, डन, एवरीथिंग डन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय दी होम, हेकल एंड इंट्रोड्यूस्ड दी प्रोटिस्टा। Later we are moving with the Monera which was introduced by whom, Copeland, and it introduced basically what Monera which is unicellular prokaryotes, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं सेम एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, एनसीईआरटी आप उठा के देख लीजिए, आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, कोई पॉइंट आपको छूटा नहीं होगा। लग रहा होगा मजे आ रहा होंगे, एंड आई थिंक यू आर फीलिंग गुड हियर। ठीक है, नाउ now we are dealing with the five kingdom system of classification which is acceptable. ठीक है, which is the most acceptable type of classification in this time in today's era. ठीक है, system of classification। एक बात मेरी आप लोग सुने कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसी को हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जो आगे पढ़ोगे सब वो इसी के बारे में होगा, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया वो बेसिकली आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी बुक में गिवन थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के पहले भी कई सिस्टम आए थे, क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए थे, बट दीज वर रिजेक्टेड। ठीक है, मतलब दीज वर नॉट सो एडवांस्ड, रिजेक्ट नहीं हुआ, सॉरी आई एम सेइंग। ठीक है, बट दीज वर नॉट सो एडवांस्ड, उन्होंने सभी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं देखा। ठीक है, दे आर नॉट डीलिंग विद द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रॉब्लम वाज दैट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या देखा गया, इन ऑर्डर टू मेक of in order to make better system of classification, one should focus on one should focus upon body structure, body organization, लिख लेने दीजिए फिर आपको समझाता हूँ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, so in order to make a better system of classification, things which were need to be focused upon, these things were the body structure, body organization, mode of reproduction, mode of nutrition and phylogenetic relationship। ठीक है, so what do you understand by the body structure basically? ठीक है, what do you understand the what do you understand by the body structure? It means whether an organism consists of single cell or whether an organism consists of multi cell, right? Unicellular, eukaryote or prokaryotes. And let me clear you please that if you are not aware about the eukaryotes and prokaryotes, I think this thing you have taught in your ninth standard. But in case you are not aware about the eukaryotes and prokaryotes, so basically eukaryotes are those organisms
which have true nucleus. ठीक है, they have a covering upon their nucleus. ठीक है, well developed cell, well developed nucleus, well developed nucleus, they have well developed nucleus like the humans. Nucleus, pure genetic material, not nucleus, because nucleus is a term which is used for the eukaryotes only. Pure genetic material. ठीक है, letter mode of reproduction, asexually, sexually, and vegetative. On the basis of vegetative, asexually, and sexually. So, a type of reproduction is sexual when there is a fusion between gamete, right? On the other hand, a type of reproduction is asexual when there is no fusion between the gamete, right? And when there is no copulation between the female and the male partner. On the other hand, if I talk about the vegetative type of reproduction, it is a type of reproduction in which an organism, a plant, anything, right, which are dealing with nothing, but it is dealing with what, the vegetative parts. It is dealing with the vegetative. So इतना आपको पता होगा, आई थिंक वेजिटेटिव, असेक्सुअली, सेक्सुअली के बारे में आराम से आपको जानकारी होगी. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको थोड़ा आगे करके लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है. एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, as I told you, evolutionary relationships, evolutionary relationships, right. So on the basis of based, ठीक है, and it is one of the most acceptable classification that we still use in this time, ठीक है, that we still, कि इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज इट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स. हालांकि वायरस एक लिविंग नहीं है लेकिन स्टिल देयर इज अ नीड टू बी कॉन्क्लूड, ठीक है, इसने उनको नहीं करा. फर्दर आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसमें डिफरेंट वेराइटीज आपको मिलेंगी. एक ही किंगडम में आपको हेटेरोट्रॉप्स मिलेंगे,